परमेश्वर आपको उदाहरण बनाने जा रहा है God विश्वास is going to make you an example of faith. मैंने कहा परमेश्वर आपको उदाहरण बनाने जा रहा है I said God is gonna विश्वास make का you an जब example लोग of आपको faith. देखेंगे कहेंगे मैं आपकी तरह विश्वास चाहता हूँ When people will see you, they will say, I want faith मैं like आपकी you. तरह छुटकारा चाहता हूँ I want deliverance like you. Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं. Just 3 more hours. बस 3 घंटे और. I don't have any dollars to give you, but I'll give you much more precious than that. Okay, so let's see this passage. Matthew 15, Matthew 15, Matthew 15, we'll read from 21 to 28. Amen? Hallelujah. Okay. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed. यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया. उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी कि हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है. English Bible says her daughter was severely demon-possessed. अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि बहुत भीषण रूप से वो दुष्ट आत्मा की ग्रसित थी, सताई थी. और वो यीशु मसीह के पास आती है. And she comes to Jesus. But he answered her not a word. लेकिन उसने उसको कोई उत्तर नहीं दिया. What do you do when you feel like there is no answer coming? आप क्या करते हैं जब आपको लगता है कि कोई उत्तर नहीं मिल रहा है मुझे? You have believed God. आपने प्रभु पे विश्वास किया है. You did everything that you knew to do. आपने सब कुछ कर लिया जो आपको पता था. But there is no answer. पर कोई उत्तर नहीं मिला. It feels like God is silent. ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर चुप है. What do you do? क्या करेंगे? वो समय है जब बहुत सारे लोग बहुत जल्दी they give up on God and start to complain and grumble and murmur. That is the time जब लोग हार मान जाते हैं, परमेश्वर पे छोड़ देते हैं और शिकायतें लाने लगते हैं. He answered her not a word. उसने उसको कोई उत्तर नहीं दिया. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries out after us. तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की कि इसको विदा करो क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है. Can you imagine? Now I want you to pay close attention. मैं चाहता हूँ ध्यान दें of what is happening. जो हो रहा है यहाँ पे. Because कई लोग यीशु मसीह को एक जादूगर के, एक अलादीन के जीनी की तरह सोचते हैं. Because many people think that he's a magician or like a genie of Aladdin. कई लोग प्रार्थना को ऐसे होते हैं, हम तो गए वहां पे, हमने तो बोला, हमारे साथ तो हुआ नहीं. परमेश्वर एक अलादीन का चिराग जीनी नहीं है. They pray like that. They say, oh, we went there but nothing happened. God is not a genie. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? वो विश ग्रांट नहीं कर रहा. तीन विश हैं. बोल बेटा क्या चाहिए? He's not granting a wish. सिद्धांत है, आपको सीखना है. There are principles you can learn. So imagine करिए यीशु मसीह के पास एक औरत आके सोचिए कि वो गिड़गिड़ा रही है, उसे चिल्ला रही है. So a woman comes to Jesus and is bitterly asking him. He's not answering. Shouting and he's not answering. वो चुप है. Isn't that insulting? क्या ये बेइज्जतीजनक नहीं है? फिर वो गई डिसाइपल्स के पास. Then she went to the disciples. चेलों के पास जाके बोल रही है. She goes to the वहां disciples. गिड़गिड़ा रही है. And she's. फिर चेले आके यीशु मसीह को बोल रहे हैं. Now the disciples इसको come. भेज दे. Please send her away. इसको भेज दे. Please send her क्योंकि away. हमें परेशान कर रही है. She's bothering us. What do you do in such situation? क्या करेंगे आप ऐसी परिस्थिति में? When the answer that you expected to come didn't come the way you expected it to come. जब जैसा आप चाहते थे वैसा उत्तर नहीं मिला, जिस तरह से चाहते थे उस तरह से नहीं मिला. But he answered, and वो चेलों को बोल रहा है. He answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया. Now imagine करिए, ध्यान से देखिए. कल्पना करें. अब यीशु मसीह उसको आंसर नहीं कर रहे. Now Jesus is not answering her. चेलों को बोल रहे हैं. He's talking to the disciples. मैं इज़राइल के गोत्र को छोड़ो और किसी के पास नहीं भेजा गया. I have not been sent to anyone other than the people of Israel. Now imagine if we were instead of that woman. अगर हम उस औरत की जगह होते, ठीक है मैं जा रही हूँ. Fine, I'm going away. क्या मिला मुझे यहाँ आके? What did I get coming here? ये तो पार्शल है. तो केवल यहूदियों के लिए करता है. He only does for Jews.
I love her response. I mean, like, man, मैं ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु हमारा हृदय भी इस औरत की तरह. उसके जवाब से मुझे बड़ा प्यार है. मैं कहता हूँ, लॉर्ड लेट आवर हार्ट्स बी लाइक दिस वुमन. जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि मैं इज़राइल की भेड़ों को छोड़ कहीं और नहीं भेजेगा, you know उसके बाद उसने क्या किया? When Jesus said, I am only sent to the lost sheep of Israel, you know what she said? She came and worshipped him. उसने आकर उसकी आराधना की. She came and worshipped him. उसने आकर उसकी आराधना की. Faith is unoffendable. विश्वास नाराजगी से आजाद है. विश्वास परमेश्वर के ऊपर नाराज नहीं होता. Faith does not get offended with God. Are you guys with me? She is now worshiping Jesus. वो यीशु की आराधना कर रही है. The same Jesus who has ignored her. वही यीशु जिसने उसको नजरअंदाज किया. She's worshiping him. उसकी आराधना कर रही है. You know why? पता है क्यों? I told you faith is persistent. मैंने आपको बताया था विश्वास निरंतरता से बना रहता है. विश्वास ना नहीं सुनता. Faith does not hear no. Faith does not give up विश्वास हार so नहीं easily. मानता. कई बार मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, इसलिए ध्यान से सुनिएगा. कई लोग आए कलीसिया में चंगाई पाने के लिए. Many people came to the church for healing. हॉल फुल था. The hall was packed. ऑफेंड होकर घर चले गए. They got offended and left. अरे घर से देख लेंगे हम YouTube. Or we'll watch from home, YouTube. किसी ने आपके सर पे गन नहीं लगाई कि यहाँ पे आओ. Nobody put a pistol on anyone's head to come here. The way we receive from God is through humility. परमेश्वर से ग्रहण करने का तरीका नम्रता है. Amen. She was unoffendable. वो नाराज नहीं हुई. वो आराधना कर रही है प्रभु यीशु मसीह. She's worshiping the Lord Jesus. और just hear this and learn this principle. Yes, She worshipped him first and then put request. ये सीखें इस सिद्धांत को. उसने पहले उसकी आराधना की और फिर अपना निवेदन उसके सामने रखा. Learn to be a true worshipper. एक सच्चे आराधक. Not just be a consumer. एक कंज्यूमर पता करता है. प्रभु मैं ये लिस्ट ला रहा हूँ. जैसे आपने देखा है कई बार आप जितनी भी वाइफ्स हो, आप हस्बैंड को लिस्ट देती हो एक. अब तो खैर ब्लिंकिट आ गया, मगर पहले जब हस्बैंड बाहर जाता था तो एक लिस्ट आती थी. धनिया ले आना, दही ले आना, ये वो लिस्ट होती थी. The wives would give a shopping list to their husbands. कई लोग परमेश्वर के पास ये लिस्ट लेके आते हैं. परमेश्वर ये दे देना, वो दे देना. You worship him first. Many people go to God with पहले उसकी आराधना करो. वो परमेश्वर है. He is God. Worship him first. Worship him first. Amen. So faith latches on to the ability and integrity of God. विश्वास परमेश्वर की क्षमता और उसकी खराई पर, उसकी ईमानदारी पर पकड़ लेता है. सीख रहे हैं आप? I can close if you guys are. अगर हो गया तो बंद कर सकते हैं. If you are. और should I flow? इधर ज्यादा मुझे लग रहा है फ्लो हो रहे हैं लोग. इधर थोड़ा कम फ्लो हो रहे हैं. So, okay, coming back. She came and worshipped, saying, Lord, are you seeing there is no change in her language? वह फिर आई और यीशु के पास आराधना करने लगी और कहने लगी, प्रभु. कई लोग अपना मिरेकल नहीं पाते क्योंकि शैतान उनको बहुत जल्दी ऑफेंड कर देता है अपने मिरेकल पाने से पहले. Many people don't get their miracle because the devil offends them way before they got their miracle. मैंने आपको पहले भी कहा था, हम लोग अपनी क्षमता में आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं. बेस्ट जितना कर सकते हैं. मैंने आपको क्या बोला है? मेरे जैसे जैसे प्रभु इस कलीसिया को ब्लेस करता रहेगा, मैं बेस्ट करूंगा सबके लिए. बट फिर भी इस बात को जानो, ये एक होटल नहीं है. We told you we will do the best for the people of God. As God blesses us, we will keep doing the best for you. But this is not a hotel. ये परमेश्वर का घर है. This is the house of God. और एक ही तरीका है परमेश्वर से रिसीव करने का, वो है नम्रता. And there's just one way to receive from God. That's through humility. हेरोद राजा ने यीशु मसीह को बोला, दिखा मुझे चमत्कार तो मैं मानूं तू कौन है, दिखा. यीशु मसीह ने उसको कुछ नहीं किया उसके साथ. Herod king said, show me a sign to believe that you're the Messiah. जो परखने के लिए आते हैं, मैं भी देखता हूं कुछ होता है कि नहीं, उनके साथ कुछ नहीं होता. They who come to say, I want to test, I want to see what happens, nothing happens to them. जो नम्र होते हैं,
those who come humbly. She worshipped him. उसने उसकी आराधना की. उसकी बेटी को दुष्ट आत्माओं ने बहुत सता रखा है. Her daughter is tormented by वो demons. जानती है मैं जब आज आई हूं ना तो आज उत्तर लेकर जाऊंगी, आज अपनी बेटी की चंगाई लेकर जाऊंगी इस जगह से. She knows when I have come today, I will take my answer. I will take my daughter's healing today. अब देखिए आगे 26. But he answered and said. उसने उत्तर दिया और कहा. वो वर्शिप कर रही है प्रभु को. She is worshiping the अब देखो Lord. यीशु मसीह ने कहा. But he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. उसने उत्तर दिया, लड़कों की बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं. Wow. Now Jesus, it feels like he leveled up. अब लग रहा है कि यीशु ने स्तर बदल दिया है. और पढ़ के ऐसा लगता है कि यीशु मसीह ने शायद उस स्त्री की इंसल्ट करी. And then you read it, feels like that Jesus has insulted that woman. मगर क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि यीशु मसीह ने ये प्यार से कहा. But what will happen if I tell you that Jesus said out of love? This has been the scripture जिसकी वजह से कई लोग अटैक करते हैं प्रभु को. ये वो वचन है because of which many people attack the Lord. क्योंकि उस वचन को नहीं समझते. Because they don't understand. आप जानते हैं यीशु मसीह ने ये he said it to her loving her. यीशु ने उससे प्यार करते हुए उससे कहा. यहाँ पे उसको कुत्ता नहीं बोला. He did not call her a dog. तैयार हैं आप सीखने के लिए? Are you ready to learn? इसीलिए जब हम थोड़ा स्टडी करेंगे, जिस भी वर्स में आपको लगता है जो डिफिकल्ट है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें उसका उत्तर असली पता चलता है. So when you study a verse which you think is difficult, you will get the answer to it. ये जो शब्द यीशु मसीह ने, आप देखेंगे बाइबल में भी उन्होंने कहा है लिटिल डॉग्स. Even in the Bible it says little dogs, छोटे कुत्ते. ये जो शब्द है, if you can put it up on the Greek, this is the word kunarion. Kunarion. ये यूनानी शब्द कुनारियन है. Kunarion, जिसका मतलब है a puppy. क्या? छोटा कुत्ता जो घर में पालतू पेट होता है, जिसको लोग करते हैं बहुत प्यार. A pet in the house that people love. ध्यान से सुनिए यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं. तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या एनालॉजी, क्या उदाहरण दे रहा है. Then you'll understand what he's trying to say, what example he's giving. आप में से लोग होंगे, कितने लोगों के घर में कुत्ते हैं जो आप कुत्तों से बहुत, अपने कुत्ते से जो लोग बहुत प्यार करते हैं वो अपना हाथ उठाएं. केवल वही. How many of you love their dogs? If you love your dog, come on, do it. अगर आपको अपने कुत्ते से बड़ा प्यार है. ध्यान से सुनिए. मगर चाहे आप अपने कुत्ते से कितना भी प्यार करें, But doesn't matter how much you love मगर your अगर dog. आपका बच्चा भूखा है, If your child is hungry, तो पहले आप अपने बच्चे को खिलाओगे, उसके बाद अपने छोटे पपी को खाना दो. you will always give food to your child first and then to your pet. यहाँ पे यीशु मसीह प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं. Jesus is talking about priority वो here. कह रहा है पिता ने पहले मुझे भेजा है यहूदियों के लिए. He's saying the Father has first sent me for the Jews. अगर आप किसी को बोलोगे ना कि यू नो, यहाँ पे यीशु मसीह वैसा कुत्ता नहीं बोल रहा जैसे धर्मेंद्र बोल रहा है.